Hi everyone. Now the next section is quantitative aptitude. Let's discuss this. Okay. Now the question says that three decorative lights are hung equidistantly on the edge of a circular swimming pool of a radius 15 meters. These lights are connected with each other by tight wires forming a triangle. So what is the perpendicular distance of the wire connecting any two lights from the center of the swimming pool? So since the lights are fixed at equal distance, so let's say ये वो तीन lights हैं. Now they are attached by a tight string. Okay, right? Now since the lights are hung equidistantly on the edge of a circular swimming pool, so it will it will form a equilateral triangle. Okay, so equilateral triangle है जिसमें the radius will act as a circumradius, right? So we need to find out the shortest distance. What is the perpendicular distance? So perpendicular distance basically we are talking about in radius. So for an equilateral triangle, the capital R is equals to 2 twice of small r. तो ये जो small r अपना हो जाएगा that will be 15 by 2 which is 7.5 meters. Okay, so we have to solve the inequality. So mod of 2x plus 5 less than equal to 3 times mod of 2x minus 1. तो लेट्स डू वन थिंग कि इसको सबसे पहले अपन होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट मॉड का रोल ही खत्म हो जाए. तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 2x प्लस 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इट विल बी 9 into 2x minus 1 होल स्क्वायर. ठीक है, आफ्टर दैट वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वी विल बी solving it. Let's say it is 2 to 4x square plus 25 plus it will be 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20x less than equal to 9 into it will be 4x square plus 1 minus 4x. ठीक है, इसको we will be इसको solve कर लेना है. right, and इस पूरे को solve कर लेंगे and finally quadratic equation बनेगा. We'll find the inequality, so it should satisfy this criteria, right? X should be less than less than minus 1 by 4 and x should be greater than equal to 2. ये वाला option इसको satisfy करेगा. Okay, now in this question एक shopkeeper क्या करता है, marks the price of an item 50% above cost price. So let us say cost price is 100 rupees, तो इसका marked price would be 150. Okay, during a festival he offers a sequence of discount. First 20% का discount अगर वो देता है तो that is 30 rupees का discount आएगा. So discounted price would be 120. उसके बाद he will give a further discount of 10% which is rupees 12. So finally selling price would be 108 rupees. Right. Now finally he gives a further rebate of rupees 30 on total bill of 10 identical items. So 10 identical items will cost him 1000 rupees और उसका selling price would have been 1080. इस पे वो further 30 rupees का discount देता है. So he will finally get rupees 1050. He still makes a profit of 5%. तो इसके according जो profit है 50, ये 1000 का 5% ही है, right? कि यहाँ पे जो 50 का profit हो रहा है that is 5% of the cost price, right? 10% is 100, so 5% is 50. तो cost price फिर जो हमने assume किया था 100, that is the correct. So answer would be 100. ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीज. ओके, नाउ इट इज मार्क्ड एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, दैट मींस 1/4, राइट? इसका 1.25 करें अगर हम तो दैट विल बी 100. ठीक है, 100 का मार्क्ड प्राइस है. नाउ आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट कस्टमर नाउ पेज रुपीज 81. सो 81 अगर पे किया तो मतलब डिस्काउंट कितने का दिया, 19% का. क्वेश्चन है कि अगर मार्क्ड प्राइस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस सक्सेसिवली बाय x%, मतलब 19% से, एंड द आर्टिकल इज सोल्ड एट द न्यू मार्क्ड प्राइस. ओके, तो नया मार्क्ड प्राइस इसका कितना हो जाएगा, इंटू 1.19 इंटू 1.19. ठीक है, सिंस वी हैव कैलकुलेटर अवेलेबल तो अपन इजीली इसको कर लेंगे. इंटू 1.19 इंटू 1.19. okay, so the price comes to be 141.61. 141.61.
ठीक है, दैट इज द न्यू मार्क्ड प्राइस, और वो न्यू मार्क्ड प्राइस पे ही सेल कर रहा है। तो लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट ही इज मेकिंग, -80 कर लेते हैं यहाँ से। सो 16161 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। पहले का प्रॉफिट इज 1 रुपीज, राइट, पहले का प्रॉफिट इज 1 रुपीज। नाउ क्वेश्चन इज कि देन द प्रॉफिट वुड बी व्हाट परसेंट मोर, तो एक कितना ज्यादा है, इट इज 60.61 ऑफ 1 into 100, so that will be 6061 percentage. 6061 percentage will be the correct answer. Okay, in this question की the value of an item depreciate x% per year, ठीक है, तो अभी उसका वैल्यू था 109350, फिर ये x% का रिडक्शन होता है, देन फर्दर x% का रिडक्शन होता है, देन फर्दर x% का रिडक्शन होता है, एंड फाइनली द प्राइस इज 79716.15. सो लेट्स सी कि यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आएगा दैट विल बी 27.1%, राइट, और 27.1% किसका सक्सेसिव डिक्रीज होता है, 10 का, राइट, 10 का 2 बार होता है 19, so it will be 29 minus 1.90, so which is 27.1. so that means कि 10% का रिडक्शन हुआ है। so let's say the value is x, 10% रिडक्शन होगा तो 9/10 into 9/10 is equal to 109350, ठीक है। तो लेट्स इसको सॉल्व करते हैं, बी यूजिंग द कैलकुलेटर हियर। 109350 will divided by 81, 1350 into 100, so answer will be 135, it will comes out to be 135000. Okay, now the question is the perimeter of a regular hexagon and a regular octagon are equal. तो let's say regular hexagon का perimeter will be, regular है तो all sides are equal, so 6 into a, and regular octagon का perimeter will be 8b. रेशियो निकालना है एरिया का। सी वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ जो हेक्सागन होता है, दैट इज 3√3, दैट इज द साइड का स्क्वायर बाय 2, दिस इज फॉर द हेक्सागन, एंड ऑक्टागन का जो एरिया होता है दैट इज 2 times √2 + 1, यहाँ पे साइड b है तो लेट अस टेक इट b स्क्वायर, राइट। इसका अपने को रेशियो बताना है। हियर वी हैव a रेशियो b अगर हम निकाले दैट इज 8/6, 4/3. Let's say if it is 4x, it is 3x. So what we have here, 3√3 into 4x का square, which is 16x square. ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 times 4 √2 + 1 b square, it is 9x square. x square cancel out. So ये अपना बन जाएगा यहाँ पे 16 3 times 48√3 into 4 √2 + 1, right। इसको सॉल्व करके just we have to solve it, we'll be getting this as the answer, ठीक है। we just have to solve it, rationalize and everything will do, तो finally अपने को ये मिलेगा। okay, so यहाँ पे क्या है कि 10 digit number is selected at random from the set of all possible 10 digit numbers, ठीक है। ऑल पॉसिबल 10 डिजिट्स नंबर कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे तो ओनली 9 वैल्यूज आर पॉसिबल, 0 नहीं आ सकता, सो 10 10 10, ठीक है। तो कितने नंबर्स पॉसिबल है यहाँ पे, 9 into 10 to the power 9, ठीक है, इतने नंबर्स आर पॉसिबल। अब देखो द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 10 डिजिट्स इन द सिलेक्टेड नंबर इज ऑड इज नियरेस्ट टू, तो सी व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल नंबर्स, तो डेफिनेटली जो हाफ ऑफ द नंबर्स होंगे, ठीक है, उनका जो बेसिकली डिजिटल सम आएगा या सम ऑफ द डिजिट्स आएगा वो ऑड आएगा, राइट। सो बेसिकली द हाफ ऑफ दिस वैल्यू, हाफ ऑफ 9 into 10/9, right, solving it we will be getting 0.50, इसका आंसर will be 0.50, okay। Now consider the data of 4 schools का data दिया गया है, the number of girls in 11th in school S3 में
स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 11th क्लास में 100, और यहाँ पे बॉयज का परसेंटेज कितना है 65। तो S3 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है दैट इज 35% ऑफ 100, मतलब 35 गर्ल्स हैं यहाँ पे। इफ 65% आर बॉयज तो 35% आर गर्ल्स, is approximately dash percentage of the number of boys in ninth in school 2. School 2 में ninth में I have 150 boys, 150 students, जिसमें boys कितने हैं 30%। 30% का मतलब है 45। So 35 is how much percentage of 45? So 5759. So 1 by 9 is 11.11. 7 into 11.11. So 77.77, तो approximately 77.78 आएगा। Okay, next one is in class 12th. ठीक है, this is the class 12th का data. The number of girls in the school dash is more than the combined number of girls in the school dash and dash. ठीक है, so we just have to option के हिसाब से देख लेना है कि पहले अपने को कंपेयर कर लेना है क्लास 12th में S2 में, जैसे हम ऑप्शन वाइज लेट्स चेक कि S2 में जो गर्ल्स हैं क्लास 12th में, सो दिस इज क्लास 12 S2 में कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, S2 में अगर हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 55 है ना, 45 अगर बॉयज हैं तो देयर विल बी 55 गर्ल्स S2 में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज मोर, ये ज्यादा होनी चाहिए देन द कंबाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द S1 S3 में। तो देखो S1 और S3 में 125 120 125 एंड 120, इसका 20% मतलब यहाँ पे 25 गर्ल्स है। ठीक है, यहाँ पे 40% का मतलब हो जाएगा 36 गर्ल्स। तो ये ज्यादा है क्या यहाँ पे 61 नहीं है, तो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, राइट। तो इन द सिमिलर वे वी हैव टू चेक वन बाय वन, सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो जस्ट कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस। ओके, चलो, फॉर ऑल द स्कूल द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द क्लासेस इन असेंडिंग ऑर्डर इन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो किसमें ज्यादा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दैट मीन्स कि वन बाय वन आई हैव टू चेक कि नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं फॉर ऑल स्कूल्स टुगेदर, तो पूरा का पूरा इट विल बी कैलकुलेटिव कि पहले अपने को क्लास 9th में सारे स्टूडेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, 10th में सारे, 11th में सारे, ठीक है, 12th में सारे, ये सारे ऐड करने पड़ेंगे। देन वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एज वेल। ठीक है, फिर वहां से निकालना पड़ेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉयज कहाँ पे ज्यादा है, तो सब में निकालना पड़ेगा। इसका 40% निकालना पड़ेगा, इसका 30%, इसका 20। तो जस्ट कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, राइट, नथिंग मच इन इट। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व है। तो करना इसको कैसे है कि हर स्कूल से नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेने, एडेड, तो वो 10th क्लास के बॉयज आ जाएंगे, देन 9th के, 10th के, 11th के, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में वी विल अरेंज। ठीक है, ऑन अरेंजिंग द स्कूल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल क्लासेस द करेक्ट ऑर्डर इज। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना है, ऑन अरेंजिंग स्कूल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल क्लासेस, सारी क्लासेस में गर्ल्स का टोटल ऑर्डर। तो सेम से हम यहाँ पे बॉयज निकाल चुके थे, तो वी सिंपली हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे क्या करना है, स्कूल वाइज है, अरेंजिंग द स्कूल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल क्लासेस। तो आपको देखना पड़ेगा कि S1 में गर्ल्स, यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ से सारी नंबर ऑफ गर्ल्स को निकाल लेना है। सेम फॉर S2, ठीक है, एंड देन जस्ट वी हैव टू check the options, right? Just calculation is involved, so we'll not be wasting much time in calculation here. Okay, now the Yasin was traveling from city A to city B. He traveled first 1/5 of the distance at 10 km per hour and next 3/12, मतलब एक तो 1/5 and 3/12 of the, and next 3/12 of the distance at 15 km per hour. Of the remaining distance, he traveled one part at 20 km per hour and the rest of the distance at 12 km per hour. अगर उसका एवरेज स्पीड दे रखा है एंटायर ट्रिप का वो 16 किलोमीटर पर आवर है, तो व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रिप डिड यासिन कवर एट 20 किलोमीटर पर आवर? तो सी, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ही ट्रेवल फर्स्ट 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स से टोटल डिस्टेंस इज d, तो फर्स्ट उसने क्या किया, d/5 ऑफ द डिस्टेंस
एंड नेक्स्ट 3/12 ऑफ द डिस्टेंस, और उसके बाद जो अगला 3/12 ऑफ द डिस्टेंस है वो उसने कवर किया 15 की स्पीड से, ठीक है। अब ऑफ द रिमेनिंग ही ट्रेवल वन पार्ट एट 20 एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट, तो उसका एक पार्ट, और जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस था वो 12 किलोमीटर पर आवर पे था, तो एवरेज स्पीड उसका दे रखा है। तो लेट्स सी अगर हम टोटल डिस्टेंस को सपोजिंगली कुछ मान भी सकते हैं, लेट अस अज्यूम 12 और 5 का लेट्स टेक एन एलसीएम कि टोटल डिस्टेंस को सपोज इफ आई अज्यूम टू बी 60, तो 60 का 1/5, ठीक है, 60 का 1/5 इज 12, तो ये 12 किलोमीटर ही ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 10, ठीक है। देन 3/12, देन इसका 3/12, सो 12 5 5 3 आर 15, तो अगला 15 किलोमीटर ही ट्रेवल्ड एट 15, अगला 15 किलोमीटर ही ट्रेवल्ड एट 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड वन पार्ट एट 20, तो अब बचा कितना था अपने पास 15 प्लस 12 जो हो गया दैट इज 15 प्लस 12 27, 27 यानी 60 में से 33 बचा है, तो इस 33 का वन पार्ट, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस ही ट्रेवल वन पार्ट एट 20 एंड द रेस्ट एट, तो ये पार्ट उसने चला 20 की स्पीड से और ये पार्ट उसने चला 12 की स्पीड से, और एवरेज स्पीड अपने को एंटायर ट्रिप का कितना दे रखा है 16 दे रखा है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, सिंपली द टोटल डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ये वाला टाइम हो जाएगा 12/10, ये वाला टाइम 15/15, लेट्स से कि ये वाला पार्ट x था, तो दिस पार्ट विल बी 33 माइनस x, तो यहाँ पे प्लस x/20 प्लस 33 माइनस x/12, ये मेरा एड, दिस इज टोटल डिस्टेंस, दिस इज टोटल टाइम, दैट हैज टू बी 16, तो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x और वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम द DI 3 पाई चार्ट्स अपने को दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय स्टूडेंट एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईयर्स एंड जेंडर रेशियो दे रखा है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज इन कॉलेज इज 43200 एंड 15% ऑफ ऑल फीमेल स्टडी इन फोर्थ ईयर, ठीक है। सो हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट स्टडी इन द फोर्थ ईयर, तो सी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 43200, और इसमें से जो 15% स्टूडेंट्स हैं 15% ऑफ ऑल फीमेल, तो सबसे पहले देखते हैं 62.5%, मतलब दैट इज 62.5% इज 5/8, सो 5/8 ऑफ 43200 करेंगे, दिस विल गिव मी द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, है ना। 5/8 अगर हम इसका करते हैं तो वी विल गेट द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका 15% दैट इज 3/20, दे आर इन द फोर्थ ईयर, तो अपने को बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द फोर्थ ईयर, कितनी स्टूडेंट्स कितनी फीमेल जो है वो फोर्थ ईयर में, ठीक है। दिस इज द फीमेल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में 43200 है, जिसमें से 15% ऑफ द फीमेल जो है वो फोर्थ ईयर में, तो लेट्स सॉल्व इट। So it will be 13/3 इन द फोर्थ ईयर में आ रहा है ना। सेकेंड कुछ एरर हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेटा फोर्थ ईयर में अपने को चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज 43200, ठीक है, 43200 एंड 15% ऑफ द फीमेल। अब अपने को ये पता है कि शेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट ईयर्स, ओके, डिफरेंट ईयर में जो स्टूडेंट का शेयर है, ओके, डिफरेंट ईयर्स में जो स्टूडेंट का शेयर है दैट इज 144, कैन आई से इट इज 144/360, क्योंकि ये पूरा क्या है डिग्रीज में, सो 144/360 डिग्री, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इन द फोर्थ
अच्छा, they are in the first year. 72 degree are in. Okay. The slight mistake we are doing here. इसकी female is in the this 37.5. मतलब female जो है that is 43200 का 3/8 है, right? 3/8 है, and इसका 15% which is 3/20 we will calculate. ये calculate करेंगे. So here we have 8584. So this will be cancelled out. So 2 are 4. 2 7 are 14. So 270 into 9. 2430. So this will be the correct. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था. 62.5 is male, not female. Female is 37.5, which is 3/8. Okay. Now the total number of students in the college is 39600, and 5940 of the students in the first year are female. So what percentage of all female students study in the first year? ठीक है, तो अगर कॉलेज में टोटल 39600 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 5940 ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर आर फीमेल, तो पहले फर्स्ट ईयर में वी विल कैलकुलेट. फर्स्ट ईयर में ये है 144. सो 144 बाई 360 into 39600. This will give me the number of student in the first year. ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं वो मिल जाएगा. आउट ऑफ दैट इफ आई इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5940, ठीक है, इसमें से वी हैव 59 and 5940 of the student in the first year are female. तो what percentage of all female students in the first year? ठीक है, फर्स्ट ईयर में जितनी भी फीमेल हैं, what percentage of all female students study in the first year? तो ये है टोटल फीमेल 37.5. ठीक है, 37.5, या हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि 39600 का 37.5% निकाल लेते हैं. ठीक है, दैट विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, और उसमें से ये चेक कर लेना है कि 5940 है उसका कितना परसेंटेज है. ठीक है, कैन बी डन इजीली. नेक्स्ट इज देयर आर 12,960 स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग वोकेशनल कोर्सेज इन द कॉलेज ए. ओके, ठीक है, अ क्वार्टर ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स स्टडी इन द सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज. सो हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स स्टडी इन द सेकेंड ईयर इन द कॉलेज? अब देखना बहुत ध्यान से कि देयर आर 12,960 स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग वोकेशनल कोर्सेज इन कॉलेज ए. ठीक है, तो ये है वोकेशनल कोर्सेज का. तो वोकेशनल कोर्सेज अपना कितना है? 108 डिग्री है. तो ये 108 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? These students who are studying vocational courses. Now a quarter of all female students study in the second year of college. ठीक है, तो अगर अपने पास 108 डिग्री का वैल्यू गिवन है तो we will calculate the value of 360 डिग्री, तो which will give me the total number of students in all the courses. ठीक है, total number of students in all the courses वो अपने को मालूम पड़ गया. फिर उसका 37.5% अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं, देन वी विल कैलकुलेट 37.5% ऑफ इट, जो अपने को क्या दे देगा? नंबर ऑफ फीमेल्स. फिर अ क्वार्टर ऑफ ऑल फीमेल स्टडी इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज. ठीक है, उसका 1/4, तो जो भी नंबर ऑफ फीमेल आएगा उसका जो 1/4 है दे आर इन द सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर में कितना है? 108. ठीक है, तो 108 का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, या 108 का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है 12960 है, तो यहाँ पे भी वो 12960 ही रहेगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बोथ केसेस में विल बी सेम. तो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स इन द सेकेंड ईयर इन द कॉलेज. ठीक है, तो 108 विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से जो फीमेल का 1/4 माइनस करेंगे तो दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ मेल्स. ठीक है, इजी था ये भी. लेट्स सी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज. ठीक है, थर्ड ईयर में जो टोटल स्टूडेंट्स है दे आर 11520. तो थर्ड ईयर में यहाँ पे क्या है? 72 डिग्री. तो वो 72 डिग्री का वैल्यू है, 72 डिग्री का वैल्यू इज 11520. तो अपन 360 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे. If 6% of if 6% of all female students in the college are third year students, तो total student यहाँ से निकाल लेंगे, उसका 37.5% निकालेंगे, तो we will get the number of female, and then उसका 6% we will calculate, that will give me of all female students in the college. उसका 6% थर्ड ईयर में. इन द थर्ड ईयर आर साइंस स्टूडेंट्स. ठीक है, इन द थर्ड ईयर में 6%, और उसमें है टोटल कितने? 45. तो इस 45 का वैल्यू निकाल के उसमें से 6% माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द मेल स्टूडेंट.
ठीक है, तीनों ग्राफ का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। Okay, now PQ and R, they enter a partnership. P contributes 1/5 of the whole capital. ठीक है, तो देखो P ने contribute किया है 1/5 of the whole capital. चलो ठीक है, while Q contributes twice as much as P and R. तो Q ने contribute किया है P और R से twice as much as P and R. Okay, now P contributes 1/5 of the whole capital. चलो अगर अपन होल कैपिटल को 5x मान लेते हैं तो देन P वुड हैव कंट्रीब्यूटेड x, तो बाकी जो 4x है वो किसने कंट्रीब्यूट किया होगा, Q और R ने। ये P अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, तो Q और R ने कंट्रीब्यूट किया है ये। ओके, नाउ ये कहता है कि अब यहाँ पे P Q R मिलके कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 3, और यहाँ पे टोटल कितना है 5। एक काम करते हैं, इसको 15 ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट टू बी 15, तो इसका 1/5 हो जाएगा कितना 3x, तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, ये हो जाएगा 12x। 1/5 इसका हो गया 3x। अब इसको भी अगर हम बना दे 15 तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो व्हाट आई गेट कि q अपॉन q और pr हो जाएगा 10 ओवर 2 5 10/5। इस 5 में से वी नो कि इसने दिया है 3, तो r ने दिया होगा 2 और इसने दिया होगा 10। ठीक है, तो ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड। अब पी क्यू आर का जो रेशियो हो गया दैट इज पी का 3, क्यू का 10, आर का 2, सो टोटल दिस इज 15। दिस 15 इज इक्विवेलेंट टू 1,555 555540। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूज का शेयर एंड कंबाइंड शेयर ऑफ पी एंड आर। द डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इज 3 1 3, 3 8 24, 3 5 15, 185180. Second wala will be the correct. Okay guys, so in this question A can complete a piece of work in 120 days, B in 180, C in 216 hours. Total work will be 1080, तो ये इनका efficiency आ गया 9 10 5 का. Now the question is, in every cycle of the 3 days only A works on day 1, B on second day, D on third day, a second day, C on the third day. In the nth cycle, each of A, B and C work for n hours. An exception is made on the last day if the work is completed mid-cycle. So what is the total number of days needed for the work to be completed? Note, if on the final day of the work, the person working is supposed to work for P hours, but the work gets over after just Q hours, that should be considered only P by Q day. Okay, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कि देखो जैसे फर्स्ट साइकिल में, राइट, nth साइकिल में दे विल वर्क फॉर, सपोज फर्स्ट साइकिल में दे विल बी वर्किंग फॉर 1 आवर, तो पहली साइकिल में कितना काम हो जाएगा 9 + 10 + 5 × 1। ठीक है, देन इन द सेकेंड साइकिल ये हो जाएगा 2 9 + 10 + 5। ठीक है, इन द थर्ड साइकिल 3 9 + 10 + 5। तो फोर्थ साइकिल में दे विल बी वर्किंग 4 आवर्स, तो वर्क विल बी 4 टाइम्स। Like this nth cycle में the work done will be 9 + 10 + 5, और ये total work अपना होना चाहिए, how much it should be 1080. Okay, so if I take 9 10 + 5 15, 15 + 9 24, so 24 into bracket में I have 1 + 2 + 3 + and so on up to n is equal to 1080. So it will be 24 into n into n + 1 by 2. It should be equal to 1080. So 2 12 times, 12 9 times. N into n + 1 should be equal to 90. ठीक है, let's see अब अपन n को यहाँ पे क्या रख सकते हैं. If I put n as कि how many, basically it will give me the number of cycles ये देगा ना. If I put it into 8, 8 into 9 will be 8 into 9 will be 72, and 9 into 10 will be 90, right? Just a second now.
स्लाइट एरर यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इट शुड बी 5 होना चाहिए यहाँ पे. दिस हैज टू बी 200 18 into 6 it will be ना. it would be 6. यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, लेट्स करेक्ट इट. ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइट एरर. ओके, ठीक है, तो एक साइकिल में जो वर्क होगा दैट विल बी 9 प्लस 6 प्लस 5. ठीक है, दूसरी साइकिल में 2 आवर्स दे विल बी वर्किंग प्लस 2 9 6 प्लस 5 एंड सो ऑन. एंड जो nth साइकिल होगा उसमें 9 प्लस 6 प्लस 5, ये होना चाहिए टोटल वर्क. राइट, सो इट शुड बी 1080. अगर हम इसमें 9 प्लस 6 प्लस 5 इफ आई टेक कॉमन, तो अंदर वही बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 2. it goes till n, there it is 1080. So it is 6 plus 20 into n into n plus 1 by 2. It will be 10 1080. So here I am getting it to be n into n plus 1 to be 108. Right, so n and n plus 1 two consecutive numbers hai. So we have 9 into 9 into 10 n into n plus 1 है. तो इट विल बी 9 इंटू 10, तो 90 हो जाएगा अपना, और 10 इंटू 11 विल बी 110. तो मतलब इन दोनों के बीच में होगा, राइट. तो 9 तो कंफर्म है, तो वी कैन प्रोसीड विद 9 की 9 साइकिल्स तो होगा. तो लेट्स सी 9 साइकिल्स में हमारा कितना जो वर्क हुआ होगा वो चेक कर लेते हैं. तो 9 यूनिट में जो साइकिल जो वर्क द वर्क व्हिच वुड हैव बीन कंप्लीटेड विल बी 20 इंटू 9 इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो ये चेक कर लेते हैं. 900 तो वर्क हो चुका है अपना. ठीक है, 9 साइकिल्स का मतलब 900 तो वर्क हो चुका है. ओके, तो एक साइकिल में 3 दिन है, 9 साइकिल मतलब 27 डेज. तो चलो अपने पास ये आ गया, 900 वर्क हो चुका है. नाउ जो 10th साइकिल होगा, ठीक है, 10th साइकिल होगा अपने पास, तो उसमें 10 आवर्स वर्क करेगा. ठीक है, 10 आवर्स वर्क लेफ्ट इज हाउ मच 180. ठीक है, वर्क लेफ्ट इज 180. तो ए काम करेगा उसमें कितना, 9 इंटू 10. ठीक है, तो 90 वर्क हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद बी आएगा तो ही वुड बी डूइंग 6 इंटू 10 विच इज 60. तो कितना वर्क हो गया, 150. 27 28 29, तो 29 डेज तो पूरे हो चुके हैं, राइट. 29 days are completed. Now the work left is 30. अब ये 30 काम को अगर हम इससे करवाते हैं तो ये करता है 5 यूनिट. इसको 10 घंटे में ये कितना काम कर सकता है, 50, है ना. 50 काम अगर ये करेगा तो 30 काम करने में इट विल टेक लाइक 3/5, है ना. राइट, सो 30/50 का मतलब 3/5 which is 0.6. तो आंसर has to be 29.6. तो 29.6 days he will take. So where we have let A is a matrix 3/3 matrix such that Aij is I plus j. Okay, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं. that is first term will be 1 plus 1 2, second term will be 1 plus 2 that is 3. यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 will be 3 4 and 5. ठीक है, इधर आ जाएगा 4 5 and 6. राइट, सो ये मैट्रिक्स बनेगा अपना. ठीक है, 1 plus 1 1 plus 2 1 plus 3 2 plus 1 2 plus 2 2 plus 3 1 plus 3 1 plus 4 3 plus 2, राइट, एंड 3 3. ये हो जाएगा अपना. तो ये मैट्रिक्स बना. नाउ व्हाट विल वी डू कि हम यहाँ पे 2 minus lambda 3 then 4 3 here, then I have 4 minus lambda and then 5 4 5 and 6 minus
lambda, ये बना अपने पास। अब लेट्स सॉल्व इट, तो इसको अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो दिस इज 2 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा इंटू 6 माइनस लेमडा, ठीक है। तो इट विल बी 24 minus 4 lambda minus 6 lambda and minus 6 lambda plus lambda square, ठीक है, ये बनना चाहिए। then next we have plus 3, okay, तो यहाँ पे what we have 3 तो 20, ठीक है, these and this will be cancelled out, 4 5s are 20 minus 20 minus 3 6 are 18 plus 3 lambda, ठीक है, then plus 4 here it is, so 4 का value will comes out to be 15 minus 16 plus 4 lambda, ठीक है। so this is, अब इसको पूरा जब अपन सॉल्व कर लेंगे आगे, तो I'll just write the final result, it will be lambda cube minus 12 lambda square minus 6 lambda is equal to 0, ये बनेगा, ठीक है। now we can simply compare it with this a cube plus ka square plus la plus la plus m i के साथ अपन इसको कंपेयर कर लेंगे, okay? तो here we have वैल्यू अपने को k का वैल्यू विल बी -12, l का वैल्यू विल बी -6 and m का वैल्यू विल बी 0 here, so we have to find k plus l plus m, that is -18 it has to be. So here we have a cross b intersection b cross a. So we can simply इसको अपन लिख सकते हैं a intersection b क्रॉस हो जाएगा किसके साथ, b इंटरसेक्शन a के साथ, ठीक है। और ये वैल्यू अपने को ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 10, तो दिस वैल्यू विल आल्सो बी 10, तो 10 10, इसका आंसर विल बी 100. Now what we have the slope of the tangent to the curve, ठीक है। इक्वेशन दिया y is equal to x square minus 4 cos of x. So what will we do? First of all, we'll differentiate it. On differentiating, we will be getting 2x. Cos x will be minus sin x plus 4 sin x. ठीक है। Now to get to maximize it, एक बार और करना पड़ेगा, double differentiate. On double differentiating, इसको डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अपने को मिलेगा 2 प्लस ये 2 हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होता है प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है। देन इक्वेटेड टू 0, वी आर गेटिंग कॉस एक्स इज इक्वल टू -2/4 यानी -12. कॉस इज नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव अपना कॉस होता है कहाँ पे, 0 से लेके पाई के बीच में इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। So the value will be this 2π/3, ठीक है, that is pi minus pi/3, so 2π/3 will be the answer for this. The next question says which of the following relations is an equivalence, ठीक है। equivalence के लिए we know the condition, ठीक है, symmetric, reflexive and
ट्रांजिटिव। ओके, तो अगर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस अगर हम सिंपली देखते हैं, लेट्स सी रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, है ना। तो दिस इज ये रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो दिस रिलेशन R3 हैज टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस अपने पास वी हैव this R3. Now, this question says that Arun scored 25, 13, 12, and 22 points in the 6th, 7th, 8th, and 9th basketball games. Okay, let's add all these value. So we have 25, 35, 35 and 5, 40, 50, 60, 70, 72. So total in these 4 games उसने score किया कितना, 72. Okay, his points per game average after the 9 game was higher than after the 5 games. If his average after the 10 games was greater than 19, तो least number of points he could have scored in the 10th game में least point उसने कितना score किया होगा। Okay, तो up to the 9th game अगर हम बात करें, let's say sum of the 9 game is S9 and the sum जो score का है that is S5, ठीक है, प्लस 72। तो ये उसका जो सम हो गया, दिस विल बी द सम ही स्कोर्ड इन द 9th गेम। तो अगर हम 9th गेम का एवरेज निकालें तो दैट विल बी S5 प्लस 72 ओवर 9। और इसमें क्या दिया है कि जो एवरेज है आफ्टर 9 गेम्स वाज हायर, मतलब दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन S5 ओवर 5, ठीक है। S5 ओवर 5 से ये वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए। तो लेट्स सॉल्व इट। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो व्हाट आई हैव 5 टाइम्स S5 प्लस 72 into 5, 360 greater than equal to 9 times S5. Okay, so it is 360 and it is 4 S5. तो दैट मीन्स कि जो उसका अप टू 5th गेम तक का स्कोर है इट हैज टू बी लेस देन 90, ठीक है। 5th गेम तक का स्कोर जो है दैट हैज टू बी लेस देन 90। अब लेट्स से कि जो 10th गेम में सपोज ही स्कोर्ड x, तो 10th गेम में जो उसका सम होगा दैट वुड बी S5 प्लस 72 प्लस लेट्स से x, ठीक है, दैट वुड बी द सम। नाउ अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं बाय 10 तो एवरेज आ जाएगा, वो ग्रेटर देन, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 19। ये मेरा क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 19। सो S5 प्लस 72 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन 190। तो S5 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 102, sorry 118, has to be greater than equal to 180, ठीक है। What is the situation कि जो S5 है it has to be less than 90, है ना। S5 जो है वो क्या होना चाहिए, less than 90 है, और S5 plus X जो है greater than 118 होना चाहिए। तो अगर हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम स्कोर, है ना, द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो उसने स्कोर किया होगा, तो व्हाट वी विल डू कि वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज S5, है ना। तो हम क्या करेंगे, S5 को एज लार्ज एज पॉसिबल, तो लेट्स एज लार्ज एज पॉसिबल आई कैन पुट इट कि ये लेस देन 90 है तो आई कैन पुट इट 89, 89 पुट कर सकते हैं। फ्रॉम देयर आई विल बी गेटिंग x इज ग्रेटर देन, इट विल बी 929, it should be greater than 29, so only value that is allowed there is 30, it should be 30. So here we have in a geometric progression, the first term a not equal to 0, common ratio r is less than 1, and the sum to the infinity is s. So we have the sum to the infinity will be 1 upon a on 1 minus r. Okay. Now second term of this geometric progression is equal to the negative
of the sum to infinity, what is the value of r? तो फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकेंड टर्म वी कैन से इट इज a into r, that is equal to minus a over 1 minus r, sum of the negative of the sum to infinity. So a and a will be cancelled. So here I have r into 1 minus r is equal to minus 1. I'll be getting r minus r square is equal to minus 1. R square minus r minus 1 equals to 0. So the value of r is equal to b square, which is 1, plus minus under root b square, which is 1, plus 4 over 2a, that is 2. So your value comes out will be 1 plus minus under root 5 over 2. Now since r is less than 1, we can proceed with the value 1 minus root 5 by 2. Okay, so root 5 is approximately 2.236. So 1 minus 2.236 over 2, that gave me minus 1.236 by 2, that is 0.618 minus, right? And since we need to find the value of where this denotes the greatest integer function, so that will be minus 1. So here we have a, b and c. Let a, b, c be sets. A minus b minus c is not equal to which options? ठीक है, ध्यान देना है, not equal to. So that means 3 are the similar to it. So a minus b minus c का मतलब है, let's see, a minus b minus c is the zone. Let's say अगर ये a है, this is b, this is c, तो we can call this zone. ठीक है, this is the zone. ठीक है, तो लेट्स सी कि विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू दिस, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला जोन नहीं मिलना चाहिए अपने को. सो लेट्स सी बी इंटरसेक्शन सी. अगर अपन बी इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इज दिस. ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ए, स्टिल आई विल बी गेटिंग दिस ना. ठीक है, ये वाला तो नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, बाकी 3 को फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल, बस एक होगा ऑप्शन, बिकॉज आउट ऑफ द 4 देयर इज ओनली वन आंसर. जैसे सेकंड को देखो, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का मतलब है एवरीथिंग इन बी एंड सी. उसको अगर हम ए में से माइनस करेंगे तो वी विल गेट दिस. तो ये तो इक्वल है. ठीक है, ये भी है, ये भी है. सो ओनली फर्स्ट इज द आंसर. सो नेक्स्ट वन, वी हैव अ बैग ऑफ टोकन्स. ठीक है, ईच टोकन हैज अ लेबल m chosen from the square of first n natural number with frequency root m. ठीक है, ओके. तो जो टोकन पे लेबल है, दैट इज square of the first n natural number, means 1 square, 2 square, 3 square, 4 square up to n square. एंड जो उनका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड n. और यहाँ पे बात हो रही है एरिथमेटिक मीन की. ठीक है, तो वी नो दैट एरिथमेटिक मीन होता है हमारे पास कितना, एफ आई एक्स आई ऑन समेशन पाई, है ना. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर द समेशन इन द स्टैटिस्टिक्स. तो अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जो एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है, वो तो सिंपली क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो दैट इज नथिंग बट एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2. ऊपर क्या है अपने पास, दैट इज एफ आई एक्स आई. ठीक है, विच इज एन इंटू एन स्क्वायर, है ना. ये एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा सबका समेशन, तो बेसिकली एन क्यूब. तो समेशन ऑफ एन क्यूब इज बेसिकली एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इट इज. ठीक है,
So one of it will be cancelled and it comes out to be n into n plus 1 by 2. N into n plus 1 by 2. Yes, that is the second option is there.